Okay, so yesterday we have seen what is the summary report and what are the chat components. So you came to know that we can create the chat components only on the summary and the matrix report, right? चलो, so आज हमने start करना है bucket field के साथ. Bucket field क्या है उसके पहले reports में चलते हैं. So एक use case देख लेते हैं. Example, एक use case हमें add the bucket field to sort and display the account record based on the annual revenue. ठीक है, बट बिफोर दैट चलो इसके पहले मैं कुछ चीजें बकेट फील्ड के बारे में बताना चाहूंगा कि क्या इसका इंपॉर्टेंस है और किस तरह से इसको ऐड करते हैं. और सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, कौन से ऐसे सिनेरियोज होते हैं जहां पे हमें बकेट फील्ड का यूज करना होता है. ठीक है, देखिए सिनेरियोज को समझना सबसे इंपॉर्टेंट है सेल्सफोर्स ट्रेनिंग. देखो सेल्सफोर्स ट्रेनिंग में आपको इंटरव्यू पे भी कई मर्तबा सिनेरियोस दिए जाते हैं. ठीक है, सो प्रॉब्लम की कॉज को समझना, जैसे हम सिनेरियो समझना बोलते हैं, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है सेल्सफोर्स की ट्रेनिंग. राइट, देखिए सो मान के चलिए कि एक छोटा सा मैं एग्जांपल पुट अप करता हूँ और उसके फील्ड से हम लोग कोशिश करेंगे बकेट फील्ड को समझना. देखिए, for example, we have an object called as student. Let's assume that we have an object student. और उसमें फिलहाल जो field है, for example, right now this object student is having two fields. You know, apart from that standard fields, वो name created by, ID last modified by. What we have assumed that we have an object called as student, and that object student presently have two fields. Student नाम की इस object में दो fields हैं. पहली है स्टूडेंट नेम, दूसरी है मार्क्स. ठीक है, दो ही फील्ड्स हैं. कौन सी? स्टूडेंट नाम का एक ऑब्जेक्ट है. फॉर एग्जांपल, लेट्स टेक दिस एज एन assumption that we have an object called as student, and the student object have these two fields. The first is what? Student name, and second is marks. These are the only two fields that are inside the object student. And then, you know, someone has entered few of the records, like Ramesh is one of the student who's having 78 marks. Ram Kumar is another student who's having 42 marks. Rakesh has scored 61. Suman has scored 91. And Sandeep has 42 marks. Okay. Now, what we want to create a report on this object student, because reports are always created on what? Reports are always created on the objects, right? So we want to create an report on this object, and the use case is that. अब एक use case पे आते हैं. तो एक use case ये है कि with every name, you know, with every name like Ramesh, Ram Kumar, Rakesh, Suman and Sandeep, with every name we should even display in the report whether the student is pass or fail. Now there is a criteria for this. There is one criteria for this. क्या है वो criteria? If the marks of the student is greater than equals to 55, this is the criteria. And if the marks of the student is greater than or equals to 55, then he's pass, otherwise he's fail. Then he's pass, otherwise he's fail. Now, what is the problem? Problem here is that we don't have any field in the object whose name is result. See, we actually don't have any object. You know, we don't have any field inside the object whose name is result, so that we can display. अब आप बोलोगे सर ये कौन सी बड़ी बात है? I mean, we can go to the object. Yes, we can go to the student object, and there we can create one another field result. और एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, हम एक फॉर्मूला फील्ड क्रिएट करेंगे रिजल्ट नाम का. ठीक है, और बेस्ड ऑन दैट फॉर्मूला फील्ड वी कैन सिंपली, हम उसकी वैल्यूज जो है ये फॉर्मूला लगाकर we can append each record. In front of every record we can decide whether the Ramesh is pass or Rakesh is fail or pass, whatever, you know, based on their marks. एक फॉर्मूला फील्ड लगा के हम कर सकते हैं. ये सब कुछ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं भाई. लेकिन प्रेजेंटली इनसाइड द ऑब्जेक्ट वी हैव ओनली टू फील्ड्स. We have only two fields, like a student name and the second is marks. And we don't have any field right now in the object. We don't have any field called as result. But inside my report, I should see three things. You know, I should see three columns. Student name, I want to get it visible on the report. Marks, I want to get it visible. And I even want to display what? Result. Problem is that there is no such field called as result. There is no such field called as a result
inside the object, and we want it to be display on the report. How we can do that? Now the approach tells us कि सर कोई बड़ी बात नहीं, आप ऑब्जेक्ट में जाइए, एक फील्ड क्रिएट कर दीजिए, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं मानता हूँ, आप, मैं एक्सेप्ट करता हूँ इस चीज को कि ये हल है इस चीज का। लेकिन अगर मैं ये कहूँ आपसे, परमिशन सेट अभी आपने पढ़ा नहीं है और इसलिए आपको पता नहीं है, लेकिन चलो मेरे, आप सुन लीजिए मुझसे ये चीज। प्रोफाइल्स, परमिशन सेट, लाइसेंसेस, कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से हम यूजर पर रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। Now, for example, I have put you on restriction. I have put a restriction on you that you cannot go to the object to create a field. You cannot create a new field inside the object. मान के चलिए कि मैं जिस 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 यूजर से मैंने लॉगिन किया है, जिस यूजर से मैंने लॉगिन किया है, उस यूजर के पास ये राइट्स ही नहीं है कि वो ऑब्जेक्ट में कुछ मॉडिफिकेशन कर सकता है, मतलब वो ऑब्जेक्ट में जाके ये नई फील्ड क्रिएट कर सकता है, ऐसे उसके हाथ में राइट्स ही नहीं। So this means that you cannot create a field called as result inside the object. You cannot make any such modification. So how to achieve that? अब कैसे लाएंगे? अब अगर हमारे पास कोई ऐसा फील्ड ही नहीं है, हमारे पास अगर कोई ऐसा फील्ड ही नहीं है जिसका नाम है रिजल्ट, तो आप कैसे डिस्प्ले करोगे उसको फिर रिपोर्ट पे कैसे? बिकॉज देखिए, रिपोर्ट्स में तो वही डिस्प्ले होता है जो फील्ड्स है ना। रिपोर्ट्स में तो आपने कल रिपोर्ट्स बनाई, टैबुलर रिपोर्ट बनाई, समरी रिपोर्ट बनाई, बहरहाल आपने जो भी रिपोर्ट बनाई, रिपोर्ट्स में तो वही डिस्प्ले होता है जो फील्ड्स हैं। जितनी भी फील्ड्स ऑब्जेक्ट में है उसी को हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके ला सकते हैं, ठीक है। ये फील्ड है इसलिए मैं लेके आ सकता हूँ, आई कैन ब्रिंग दिस फील्ड, आई कैन ब्रिंग दिस फील्ड, आई कैन ब्रिंग दिस फील्ड। व्हाई? बिकॉज भाई ये फील्ड्स हैं, अकाउंट ऑब्जेक्ट में है। और मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ कि भाई ऑब्जेक्ट स्टूडेंट में दो ही फील्ड है, ऑब्जेक्ट स्टूडेंट के अंदर दो ही फील्ड है, एक है स्टूडेंट नेम और दूसरी है मार्क्स, बस। और रिजल्ट नाम की कोई फील्ड ही नहीं है और आप क्रिएट नहीं कर सकते, बिकॉज लेट्स अज्यूम कि ऑन आवर लॉगिन हमारी प्रोफाइल पे ये डिसेबल कर रखा है एडमिनिस्ट्रेटर ने, तो हम स्टूडेंट ऑब्जेक्ट में जाके ये फील्ड क्रिएट ही नहीं कर सकते। तो कैसे करेंगे सॉल्व? तो इसका एक अल्टरनेटिव सॉल्यूशन होता है बकेट फील्ड। बकेट, तो आप सुनो और लिखो ध्यान से, व्हाट इज अ बकेट फील्ड? व्हाट इज अ बकेट फील्ड? तो मैं अपने तरीके से डेफिनेशन बताता हूँ, बट लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इसको एज एन असाइनमेंट लेके जरा मोर प्रिसाइज, अच्छी लैंग्वेज में, अच्छे टेक्निकल अल्फाज को यूज करके जो डेफिनेशन गूगल से मिलती है, प्लीज उसको लिख लेना, याद कर लेना, ठीक है। हालांकि मैं अपने तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। बकेट फील्ड इज अ टेम्पररी फील्ड। Bucket field is a temporary field that we insert inside the report. Bucket field is a temporary field that we insert inside the report, and that field is only available inside the report. I mean, if you try to find out this field in the object, if you go to the student object and you try to find out where is the result, you will not find it over there. You will not find it over there because there is no such field called as result. Although we created a temporary field, and we haven't created it inside the object. We created this field on report. We created this field on report. So what is a bucket field? अभी प्रैक्टिकल में समझाऊंगा, ज्यादा अच्छे से समझो। Bucket is a kind of temporary field that we only created in the report. Report में ही रहती है, and the scope is report only. इसका स्कोप रिपोर्ट के अंदर ही, उसके बाहर नहीं। अब थोड़ा सा इसके ऊपर ना प्लीज जरा अच्छी डेफिनेशंस निकालना और गूगल करके और उसको याद करना, बिकॉज इंटरव्यू में पूछते हैं ये चीज है ना, बकेट फील्ड के ऊपर में पूछा जाता है इंटरव्यू। हाँ ठीक है। अब एक अपना जो यूज केस है उसमें क्या बोला गया है, हमारा यूज केस ऐसा कहता है कि एक तो ये कि मैंने एक बकेट फील्ड इंसर्ट करना है अकाउंट ऑब्जेक्ट के ऊपर, मतलब अकाउंट के ऊपर एक रिपोर्ट बनाऊंगा, टैबुलर ही बनाऊंगा और बकेट फील्ड इंसर्ट करूंगा कुछ इस तरह से कि एनुअल रेवेन्यू को मैं इवेलुएट करूंगा। अगर अगर कोई ऐसा कस्टमर है जिसका एनुअल रेवेन्यू इट इज मोर देन 25 लाख और समथिंग लाइक दैट, तो हम उसको नाम देंगे इट्स अ प्रीमियम कस्टमर, और जिसका इससे कम है उसको बेसिक कस्टमर नाम देंगे, ठीक है। ऐसा कुछ मैं बकेट फील्ड जो है वो क्रिएट करने वाला हूँ यहाँ पे। चलिए अब इसको, ये एग्जैक्टली क्या है आप देख लें इसको, ठीक है। सो लेट्स क्रिएट, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्रिएट अ रिपोर्ट। मैं एक नया रिपोर्ट फॉर्म करूँ, ठीक है।
Let me create a new report. New report on what? New report on the account object and then create it. ठीक है, आपको जो भी चाहिए वो रखिए. इंपॉर्टेंट एनुअल रेवेन्यू है मेरे लिए यहाँ पे, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है. सो एनुअल रेवेन्यू, हाँ ये रहा एनुअल रेवेन्यू. उसके अलावा मैं चाहूँ तो कुछ और कॉलम जैसे कि इंडस्ट्री या ओनरशिप वगैरह भी ले सकता हूँ. अब यहाँ पे देखिए मैं फर्स्ट ऑफ ऑल अकाउंट्स एंड ऑल टाइम अकाउंट्स, ठीक है, ये सब कर दिया. सो अभी देखिए ये बकेट फील्ड दिख रहा है आपको, बकेट फील्ड, इसको मैं इंसर्ट करता हूँ. कहीं पर भी आप इंसर्ट कर सकते हैं, अगर ऐसा है तो डबल क्लिक करके भी कर सकते हैं. ठीक है, दोनों तरीके से. तो आप ये जो बकेट फील्ड इंसर्ट करने जा रहे हो, सोर्स कॉलम ये कौन से कॉलम पे बेस्ड होगी? तो इट शुड बी बेस्ड ऑन व्हाट? एनुअल रेवेन्यू. एनुअल रेवेन्यू, एनुअल रेवेन्यू व्हाट यू वांट. इसको बकेट फील्ड को एक नाम दीजिए. ठीक है, सो आई एम गिविंग दिस एज टू बी द, नाम है कि यहाँ पे कस्टमर टाइप. कस्टमर टाइप नाम से एक फील्ड क्रिएट कर रहा हूँ, कस्टमर टाइप. ठीक है, अब यहाँ पे रेंजेस देखो, सारी चीजें रेडीमेड है, कुछ फॉर्मूला निकालना पड़ता है कि अगर एनुअल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू क्या, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 25 लाख जो भी है ये. इफ इट इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 25 लाख, ठीक है, तो लेस देन अपने आप ले लिया उसने, 25 लाख. तो उस कस्टमर को क्या बोलना है? वी शुड कॉल दिस कस्टमर टू बी द प्रीमियम कस्टमर. तो अगर ये ग्रेटर देन 25 लाख है तो उसे प्रीमियम बोलो. तो बेसिक दूसरा है, बिलो टू दैट वी कॉल देम टू बी द बेसिक कस्टमर. ठीक है, सब कुछ रेडीमेड है, बस और कुछ नहीं है. कॉलम डिसाइड करो कि कौन से कॉलम के बेस पे आपको करना है. नाम दीजिए, रेंज दीजिए, ओके करिए. देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर कस्टमर टाइप नाम का एक कॉलम क्रिएट हो गया, एक फील्ड क्रिएट होगी. अब अगर आप जाके अकाउंट में कस्टमर टाइप नाम की फील्ड ढूंढेंगे तो आपको मिलेगी नहीं. क्लियरली दिख रहा है ये यहाँ पे बकेट टाइप की फील्ड है. तो यहाँ दिख रहा है कुछ कस्टमर्स आपके बेसिक हैं और कुछ कस्टमर्स आपके प्रीमियम है. You run the report, you see few of them are basic customers, few of them are premium customers. Why? Because it all depends on the conditions what we have mentioned, right? तो यहाँ रिपोर्ट जब आप रन करते हैं तो आपको यहाँ पे कस्टमर टाइप नाम का एक एडिशनल कॉलम नजर आ रहा है. अब ये फील्ड अगर हम जाएं और अकाउंट ऑब्जेक्ट में ढूंढने की कोशिश करें तो हमको नहीं मिले, राइट? क्योंकि ये जो फील्ड है ये कौन सी फील्ड है? बकेट फील्ड. तो व्हाट इज अ बकेट फील्ड? बकेट फील्ड इज अ सॉर्ट ऑफ टेम्पररी फील्ड. Bucket is what? It's a temporary field and it is used to create one additional field inside the report only. इसके अलावा इसका कोई स्कोप नहीं. ठीक है, ये छोटा सा डिस्कशन कल रह गया था. चलिए आगे बढ़ते हैं. फिर कुछ गवर्नर लिमिट्स हैं जो आपने पढ़ लेनी है. ठीक है, रिलेटेड टू व्हाट? रिलेटेड टू द रिपोर्ट्स. कुछ गवर्नर लिमिट्स है, पढ़ लीजिएगा, यहीं से थ्योरी पढ़ लीजिएगा जो क्या लिखा हुआ, और उसको याद भी करेंगे ऑफ कोर्स. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ द रिपोर्ट, दैट इज द जॉइंट. Now, joint report technically allows you, it's a combination of multiple reports. First of all, what is a joint? Joint means combining two things, two or more things, right? So joint is what? Joint is a combination of one, two, more than two reports. That is what. So joint is actually, joint allows us to club more than one reports in the same report. In a single report, you can view more than one report, and that is what the joint report is, right? That is what the joint is. अब इसके ज्यादा इसके बारे में हम प्रैक्टिकल से जानते हैं. चलिए एक यूज केस सॉल्व करते हैं जिसमें एक जॉइंट रिपोर्ट हम कॉन्फ़िगर करेंगे. Did I save this? No, I haven't saved this. Let me save this. Bucket field example. So configure a joint report to represent all support cases. ठीक है, display the cases in the various tables. Example, status, new, escalated. ठीक है, यहाँ मुझे थोड़े से modifications करने पड़ेंगे. I need to make certain changes in the case object ताकि मैं आपको सही तरह से ये एग्जाम्पल समझा पाऊँ. I don't have case over here. Okay, fine. Let me have the case object first of all. So let me have the case object and see if I, here are some all open cases, all closed cases, and if I go to all open cases, I only have 3 cases that are open. So
I need to go to all closed cases. There are so many cases those are closed. What does I mean? Let me show you that. Actually क्या होता है, केस ऑब्जेक्ट में एक स्टेटस नाम की फील्ड होती है और न्यू वर्किंग एक्सकलेटेड के अलावा एक और होता है क्लोज्ड। ठीक है, एक और होता है क्लोज्ड। वो यहाँ इसलिए नहीं दिख रहा कि क्लोज्ड केसेस का डेटाबेस अलग होता है, बट केस ऑब्जेक्ट में एक फील्ड होती है स्टेटस नाम की जिसकी की 4 वैल्यूज होती है, न्यू, वर्किंग एंड एक्सकलेटेड। ठीक है, तो ये एग्जांपल जो मैं अभी लेने वाला हूँ उसको समझाने के लिए मैं केस ऑब्जेक्ट में मैंने ऑल क्लोज केसेस, ये सारी केसेस जो सबकी क्लोज्ड हैं। ठीक है, तो ये करीब 23 केसेस हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि इसका स्टेटस चेंज करने वाला हूँ। तो अब मैं बारी बारी एक एक केस उठाता हूँ यहाँ से। I'm randomly, opening few of the cases over here. Randomly, just I'm clicking and I'm making some changes. I'm making some changes inside the status. सबकी जो status है ना, सब इसको close कर देता हूँ। Starting generator failure details में जाता हूँ. Status is closed. Everywhere the status is closed. I'm few of them I'm making it new and saving it. Now few of them, I'm making it to working, save. मतलब मैं स्टेटस को चेंज कर रहा हूँ बस, और कुछ नहीं। क्लोज इट, वर्किंग, एक्सकलेटेड एंड क्लोज कर देते हैं। वर्किंग, सेव इट, ये जरूरी है वरना आपको एग्जाम्पल समझ में नहीं आए। इसलिए मुझे कुछ केसेस के स्टेटस न्यू चाहिए, कुछ केसेस के स्टेटस मुझे वर्किंग चाहिए और कुछ के एक्सकलेटेड चाहिए। और इसीलिए मैं यहाँ पर आके ये सारे चेंजेस कर रहा हूँ इसके पहले कि मैं आपको रिपोर्ट समझाऊं। So I'm done with the changes. Now let's move on to the use case. What we want to construct a joint report. एक ही रिपोर्ट में कई सारी अलग अलग रिपोर्ट्स बनाऊंगा based on the status, based on the case. So let's move on to the setup and sorry, let's create a new report. New report. केस ऑब्जेक्ट चाहिए आपको, केस ऑब्जेक्ट आपको मिलेगा कस्टमर सपोर्ट्स एंड रिपोर्ट, यहाँ ये वाले फोल्डर। सो केसेस पे जाइए, क्रिएट करिए। ठीक है, सो show the details. These many are the cases. Case owner I don't want. Subject I don't want. Actually I doesn't want. Rather what I want is case number and I want this status. Okay? These are the only two columns what I want. Now see, if I take all cases, all time cases. Now if I run this report, initially if I run this report, see all together how many records are there. There are 26 case records what is there in displayed on this report.
Some of the case number is having the status to be escalated. Some of them is having new. Some of the status of the case is working. Some of them are closed. What we want to create a report in such a way that we should see all all of the new case in a single report. एक रिपोर्ट में सारे न्यू केसेस होने चाहिए, दूसरी रिपोर्ट में सारे वर्किंग केसेस होने चाहिए. all I mean, I just want to group every, I want to create separate report for every type of the status of the report. That is what the use case is. So here we actually are creating the joint report. Here we actually are creating the joint report. Guys, give me a second, please. कैसा ये अभी आप जो देख रहे हैं ये एक सिंगल रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट में सारे स्टेटस एक साथ में क्लब दिख रहे हैं. तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें, क्योंकि ये टैबुलर रिपोर्ट है, मैं इसको कस्टमाइज करता हूँ और रिपोर्ट्स के टाइप को चेंज करता हूँ. अब मैं रिपोर्ट के टाइप को टैबुलर से लेके जाता हूँ जॉइंट के ऊपर. ठीक है, तो जैसे कि आप देख रहे हैं अभी जॉइंट पे यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि भाई फिर से वैसी रिपोर्ट दिख रही है. आप चाहें तो इसको, अब इसके नाम मैं चेंज कर सकता हूँ. तो यहाँ डबल क्लिक करें तो केस स्टेटस एक सेकेंड, और रादर न्यू केसेस, कुछ और नाम देते हैं, न्यू केसेस. इस रिपोर्ट का नाम दे दिया मैंने न्यू केसेस. ठीक है, बस रीनेम किया और कुछ नहीं किया. लेकिन अभी भी इसमें आप देखें सारी तरह की केसेस नजर आ रही है. ये ड्रॉप जोन की चिंता मत करो, छोड़ दो उसको. तो अब मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊं. ठीक है, अब एक एक जो चीज यहाँ देखने वाले हो आप, जैसे ये मैं फॉर्मूला ऐड करता हूँ. ठीक है, केस स्टेटस इक्वल्स टू, स्टेटस पे, स्टेटस कॉलम पे केस स्टेटस इक्वल्स टू न्यू, इंसर्ट सिलेक्शन और ओके. ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पे एक फॉर्मूला लगा है. एक ही रिपोर्ट है, अभी तक एक ही रिपोर्ट बनी है और ये रिपोर्ट में अभी फिलहाल मुझे वो सारी केसेस नजर आ रही हैं जिसका स्टेटस क्या है, न्यू. अगर मैं इस वक्त इसको रन करता हूं तो मुझे एक ही रिपोर्ट दिखेगी. ठीक है, एक ही. चलो, अब और कस्टमाइज कर रहा हूँ. तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसी कैनवस पे, ऑन द सेम कैनवस, इसी कैनवस के ऊपर फिर से इस रिपोर्ट में दो कॉलम है, केस नंबर और स्टेटस. यहां से फिर से वही दो कॉलम लेके आता हूँ. केस नंबर यहाँ पे ड्रॉप नहीं करना है, आगे आके ड्रॉप करना है. एक नया रिपोर्ट तैयार हो रहा है. ठीक है, केस नंबर स्टेटस, केस नंबर स्टेटस. ठीक है, एक और रिपोर्ट तैयार होगी. वैसे अभी उसमें देखेंगे तो पूरी फिर से सारे दिख रहे हैं, सारी स्टेटस की केसेस नजर आ रही है. तो सबसे पहले इसको रीनेम, क्या चाहते हो आप यहाँ पे, केस वर्किंग केसेस, ये इसका नाम दिया. ठीक है, अब मैं एक चीज दिखाने वाला था आपको, थोड़ा सा इसको ड्रैग कर लेते. यहाँ पर ये एक फॉर्मूला, थोड़ा ध्यान से देखो, थोड़ा सा मतलब माइन्यूट है, इसलिए एक फॉर्मूला पहले ही लग चुका है. ठीक है, एक फॉर्मूला पहले ही लग चुका है. यहाँ से मैं अगर नीचे ड्रैग करके आता हूँ, यहाँ से अगर मैं नीचे ड्रैग करके आता हूँ तो अभी आप देखिए कि सेकंड यहाँ पे दिख रहा है, वर्किंग केसेस का एक नया कॉलम क्रिएट हो गया जो कि इसके पहले नहीं था. वर्किंग केसेस का एक नया, कहना चाहिए कि एक नया पूरा फॉर्मूला फील्ड क्रिएट हो गया. ये इसके पहले नहीं था, क्योंकि इसके नीचे अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है, देखो. ठीक है, ऐसे ये पहले हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ पे मैंने वर्किंग केसेस लिखा, यहाँ पे वर्किंग केसेस लिख के आ गया. तो अब वर्किंग केसेस में मैं ऐड करता हूँ. जैसे यहाँ पे न्यू केसेस लिख के आया है. ठीक है, ये इसके लिए यहाँ जो फॉर्मूला लगाया आपने वो किसके लिए, न्यू केस के लिए. थोड़ा नीचे जाएंगे तो अब यहाँ दिख रहा है वर्किंग केसेस. ये वर्किंग केसेस के लिए पूरी फॉर्मूला फील्ड फिर से क्रिएट होगी. जो ऊपर है वही नीचे, सारे कंट्रोल. लेकिन ये है न्यू केसेस के लिए, यानी इस रिपोर्ट के लिए. और ये दूसरा जो है ये वर्किंग केसेस यानी इस वाली रिपोर्ट. यहाँ पर मैं एक फॉर्मूला ऐड कर रहा हूँ. क्या, किस कॉलम पे चाहिए मुझे, केस के स्टेटस. केस का स्टेटस इक्वल्स टू व्हाट, वर्किंग. तो अब मुझे सिर्फ वही रिकॉर्ड नजर आएंगे, अभी पूरे नजर आ रहे हैं. अगर मैं ओके करता हूं तो अब सिर्फ वही रिकॉर्ड्स नजर आएंगे जिनकी स्टेटस वैल्यू है वर्किंग. ये दूसरी रिपोर्ट ऐड कर दी.
एक से ज्यादा रिपोर्ट इसलिए ऐड कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरा फॉर्मेट कौन सा है, जॉइंट। तीसरी रिपोर्ट, पहले क्या चाहिए मेरे, पहले केस नंबर स्टेटस। ठीक है, तीसरा रिपोर्ट, इसका नाम, इसको रीनेम करता हूँ, इसका नाम देता हूँ भाई न्यू केसेस, वर्किंग केसेस, एक्सकलेटेड केसेस, एक्सकलेटेड केसेस। ठीक है, द केसेस विच आर एक्सकलेटेड। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ नीचे आता हूँ तो वर्किंग केसेस के नीचे देखिए, पहले नहीं हुआ करता था, अब एक नई फॉर्मूला फील्ड ऐड होगी। कौन सी रिपोर्ट के लिए, एक्सकलेटेड केसेस रिपोर्ट के लिए। ठीक है, तो ये हर बार एक एक ऐड होता जाता है। जब भी आप एक नया रिपोर्ट ऐड करते हो तो यहाँ पर एक नई फॉर्मूला फील्ड अपने आप क्रिएट होती है। क्या चाहते हैं आप, स्टेटस की फील्ड के ऊपर, स्टेटस शुड इक्वल्स टू एक्सकलेट। तो अब यहाँ पे आपको, हाँ ओके, पहले अभी तो पूरा दिख रहा है, लेकिन आप ओके करेंगे तो अब आपको केवल वही रिपोर्ट नजर आएंगी जिसका स्टेटस की वैल्यू एक्सकलेटेड। एक और बचा है क्लोज्ड। एक और रिपोर्ट क्रिएट करते हैं, फाइनली फिर इसको रन कर लेंगे। केस नंबर एंड स्टेटस, और इसका नाम देता हूं मैं क्लोज्ड केसेस। क्लोज्ड केसेस, ठीक है। तो अब मैं यहाँ अगर फॉर्मूला फील्ड पे आऊंगा तो एक्सकलेटेड के नीचे एक नई फॉर्मूला फील्ड क्रिएट हो चुकी है क्लोज्ड केसेस के लिए। ऐड करिए, बेस्ड ऑन द स्टेटस कॉलम, स्टेटस शुड इक्वल्स टू व्हाट, क्लोज्ड एंड ओके। ठीक है, अब आप इस रिपोर्ट को रन करिए एंड सी हाउ डज इट लुक्स लाइक। सी, एक ही रिपोर्ट के अंदर आपको एक से ज्यादा रिपोर्ट नजर आए। ये कौन सी रिपोर्ट है, ऑल ऑल न्यू केसेस, ऑल वर्किंग केसेस की रिपोर्ट, ऑल एक्सकलेटेड केसेस की। ठीक है, ऑल क्लोज केसेस की रिपोर्ट। देयर आर 11 रिकॉर्ड, देयर आर 5 रिकॉर्ड्स, 4 रिकॉर्ड, 6 रिकॉर्ड। ये कहलाता है जॉइंट रिपोर्ट। नाउ व्हाट यू कैन डू हियर, यू कैन रन द रिपोर्ट। कैन वी स्केड्यूल दिस रिपोर्ट। अब बताओ, ये सिंपल बटन है या पिक लिस्ट बटन है, कौन सा बटन है, ये सिंपल बटन है। यहाँ पिक लिस्ट मेनू है क्या, नहीं। तो एक पॉइंट अब लिखें आप सभी लोग, यू कैन नॉट स्केड्यूल्ड अ जॉइंट रिपोर्ट। जॉइंट रिपोर्ट स्केड्यूल्ड नहीं हो सकती। टैबुलर रिपोर्ट हो सकती है, समरी रिपोर्ट हो सकती है, मैट्रिक्स, जब मैट्रिक्स आएगा तब देखेंगे, बट एटलीस्ट यस, जॉइंट रिपोर्ट कैन नॉट बी स्केड्यूल्ड। जॉइंट रिपोर्ट स्केड्यूल्ड नहीं हो सकती। कैन वी क्रिएट चार्ट कंपोनेंट्स, देखो आप चार्ट कंपोनेंट का बटन यहाँ से हाइड हो गया। वी कैन नॉट क्रिएट चार्ट कंपोनेंट एंड जॉइंट रिपोर्ट कैन नॉट बी स्केड्यूल्ड। ठीक है, तो ये था आपका जॉइंट। लेट मी कंप्लीट दिस पार्ट, लेट मी गो विद द मैट्रिक्स रिपोर्ट सो दैट कल से फिर मैं डैशबोर्ड स्टार्ट करता हूँ। मैट्रिक्स इज व्हाट, नेक्स्ट काइंड ऑफ रिपोर्ट, मैट्रिक्स इज व्हाट, मैट्रिक्स इज आल्सो अ समराइज्ड रिपोर्ट, मैट्रिक्स इज आल्सो अ काइंड ऑफ समरी रिपोर्ट। वहां समरी रिपोर्ट में एक ड्रॉप जोन होते हैं, यहाँ दो ड्रॉप जोन होते हैं। ठीक है, चलिए मैं इसको प्रैक्टिकली समझाता हूँ। एंड हियर आल्सो वी कैन क्रिएट द चार्ट कंपोनेंट्स बिकॉज दिस इज आल्सो अ समरी रिपोर्ट। तो हियर आल्सो वी कैन क्रिएट द चार्ट कंपोनेंट। लेट्स डिस्कस द लास्ट टाइप ऑफ रिपोर्ट इज मैट्रिक्स रिपोर्ट। Configure a matrix report to represent the opportunity record and summarize it based on the stage and the probability. So I want to display the opportunity record and I want to summarize. यहाँ पे दो parameters पे मैं summarize करना चाहता हूँ, on the stage and the probability. So first of all, let me create a new report. Before that, let me save this report. Let me run the report and let me save the report. This is what, this is joint report. JOI joint report. Example. EXAMPLE example. I want to store inside the align HR folder saved. ठीक है, जॉइंट रिपोर्ट भी हो। चलिए क्लोज करते हैं, रिपोर्ट्स पे चलते हैं। लेट्स क्रिएट अ न्यू रिपोर्ट, मैट्रिक्स रिपोर्ट। कौन सी ऑब्जेक्ट, अपॉर्चुनिटी ऑब्जेक्ट। सो सिलेक्ट द अपॉर्चुनिटी फ्रॉम हियर एंड क्रिएट इट। ठीक है, सो अपॉर्चुनिटी नेम, टाइप, लीड सोर्स, अमाउंट, एक्सपेक्टेड आई डोंट वांट, क्लोज डेट आई डोंट, next step I don't want, stage I want, probability yes I want it to be have in the beginning itself, stage and the probability. ठीक है, type even
I don't want the type also. Amount I want, fiscal period I don't want, age I don't want, created by I don't want, opportunity, owner role, account name I don't want. Either what could I want? I want the lead source. Lead source is already there. Probability is already. Description we can give. Don't have any description. Okay. ठीक है, इतना ही रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना. Now we have all this. We have all this. Try to see whether I can add some more fields or not. Type is what? चलो ठीक है, type को भी रहने ही दो, कोई problem. ठीक है. So I selected all this, and this is what? It's a tabular report. You know, it's a tabular. Let me change the type from tabular to matrix. See, if I select the summary, what happens? One drop zone is created. One drop zone. If I select matrix, two drop zones are created. You know, two drop zones are created. Okay. So this drop zone is for the column. This is for the row. This is for the column. This is for the row. So I want this probability. I want the probability to be go into the column. So I probability को मैंने यहाँ से यहाँ drag कर लिया, and I want the stage to be on the rows. ठीक है, stage को मैंने rows पे ले. ठीक है, तो अभी see how does it looks like. बस मैं तो रिपोर्ट को रन करता हूँ, फिर देखता हूँ. So रिपोर्ट कुछ इस तरह से दिख रही है, और रिपोर्ट is looking like this. ये तीन चीजें हटा देता हूँ, उसके बाद थोड़ा सा और ठीक तरह से दिखेगा मुझको. So opportunity name, rather let me once again run the report and see. हटा ही देता हूँ उसको, थोड़ा सही तरीके से दिखाना चाहता हूँ. तो अपॉर्चुनिटी नेम, लीड सोर्स, अमाउंट, टाइप. ठीक है, इसके अलावा आई एम मेकिंग फ्यू मोर चेंजेस. I don't want to see the record. I don't want to see the details. Don't want to see the drop zones. Now let me run the report. Add few more columns. Add. नहीं ठीक है, इतना ही सही है. हाँ ठीक है, चलो. इतने से समझो. अभी इसमें जितना ऐड करूंगा उतना कॉम्प्लिकेटेड बनेगा ये थोड़ा सा. तो देखिए, out of every opportunity and out of every opportunity, altogether I have 8 different opportunity record. First of all, ठीक है, record count I have 8. मेरे पास 8 है ऐसी अपॉर्चुनिटीज जिसका स्टेज है वैल्यू प्रपोजिशन. ऐसी कितनी है? 1. प्रोबेबिलिटी क्या होती है वैल्यू प्रपोजिशन की? 50%. आउट ऑफ 8 अपॉर्चुनिटीज ऐसी अपॉर्चुनिटी जो जिनका स्टेज वैल्यू है डिसीजन मेकिंग के ऊपर है. ठीक है, ऐसी कितनी है? 2. प्रोबेबिलिटी कितनी होती है इसके कन्वर्शन के? 60%. जिसपे एनालिसिस चालू है ऐसी कितनी है? 1. इसकी चांसेस कितने? 70%. और जिसकी जो अपॉर्चुनिटी क्लोज्ड हो चुकी है, जिसको हमने जीत लिया है, ऐसी टोटल कितनी? 4. और जो कन्वर्ट हो चुकी है उसकी उसका प्रोबेबिलिटी कितना होता है? 100%. तो ये है बेसिकली आपका मैट्रिक्स रिपोर्ट. मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट ऑफ रोज एंड कॉलम. यहाँ पे 2 ड्रॉप जोन्स होते हैं. तो इन द वन कॉलम यू सिलेक्ट द प्रोबेबिलिटी, इन द सेकंड कॉलम यू गो फॉर द स्टेज, यू गो फॉर द रोज. यहाँ पे आपने मतलब यहाँ पे रो बेस्ड ग्रुपिंग होती है, यहाँ कॉलम बेस्ड ग्रुपिंग होती है. ये होता है बेसिकली मैट्रिक्स. यहाँ पे 2 चीजों पे 2 पैरामीटर्स के ऊपर कंपैरिजन होता है. ठीक है, ऐसा. जैसे मान के चलिए कि आप इसको दे सकते हैं कि स्टूडेंट नाम की एक ऑब्जेक्ट है. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 50%, 60%, 70%, 80%, 90% कितनों के मार्क्स आए हैं. ठीक है, फिर यहाँ पे आप सब्जेक्ट दे सकते हैं कि यहाँ पे साइंस में 50% 6 स्टूडेंट के हैं, साइंस में 60% 3 स्टूडेंट के हैं, साइंस में 70% इतना. तो अगर ऐसी कोई यूज केस है तब भी आप इसको इस तरह से डिजाइन कर सकते हैं. अब ये जो रिपोर्ट होती है इस पर भी आप क्या क्या कर सकते. एक मिनट, इसको शेड्यूल कर सकते हैं क्या? यस, वी कैन शेड्यूल. मतलब सिवाय जॉइंट रिपोर्ट के बाकी सब रिपोर्ट्स को आप शेड्यूल कर सकते हैं. अब दूसरी बात, क्या इस पे चैट कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हैं? कर सकते हैं. तो बिकॉज ये क्योंकि ये भी एक तरह का समरी रिपोर्ट है. समरी रिपोर्ट में 1 ड्रॉप जोन होता है, यहाँ पे 2 ड्रॉप जोन. समरी एक फील्ड पे ग्रुप होता है, यहाँ 2 फील्ड पे ग्रुपिंग होती है. इसके ऊपर भी आप चाहें तो चैट कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है, यू कैन क्रिएट द चैट कंपोनेंट ओवर हियर आल्सो. ठीक है, ग्रुप बाय स्टेज, ग्रुप बाय प्रोबेबिलिटी, जैसा भी आप चाहें. एक्स एक्सिस रिकॉर्ड काउंट, वाई एक्सिस प्रोबेबिलिटी, और ग्रुप बाय स्टेज. ओके, नाउ
Here also we can create the chat component, even we can run the reports. यहाँ पर भी आप चार्ट कंपोनेंट प्रिपेयर कर सकते। तो ये थी आपकी 4 तरह की रिपोर्ट्स। ठीक है, ये है आपकी 4 तरह की रिपोर्ट्स। जॉइंट रिपोर्ट सबसे पहले हमने स्टार्ट किया टैबुलर से। ठीक है, टैबुलर रिपोर्ट, उसके बाद समरी रिपोर्ट, जॉइंट रिपोर्ट एंड द मैट्रिक्स। टैबुलर रिपोर्ट इज द डिफॉल्ट टाइप ऑफ एनी रिपोर्ट. You cannot create chat component on tabular report and joint report. The chat components can only be created on summary report and the matrix report. We can schedule tabular report, we can schedule summary report, we can schedule matrix report. We cannot schedule joint report. ठीक है, we cannot schedule joint report. तो एक एक बार इस पर अच्छे से प्रैक्टिस करिए और फिर मैं इसके नेक्स्ट लेक्चर में, यानी कल तो नहीं, अब कल तो आज तो फ्राइडे है, सो मंडे ऑनवर्ड आई एम गोइंग टू, मंडे को ही प्रॉबेबली, एक ही लेक्चर का काम है, डैशबोर्ड में मंडे को खत्म कर, और उसके बाद ट्यूसडे ऑनवर्ड प्रॉबेबली वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द सिक्योरिटी. दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट टॉपिक. इसके बाद एक ही चीज है डेटा मैनेजमेंट, वो मैं नेक्स्ट संडे ले लूंगा. डेटा लोडर, डेटा लोडर आपके साथ कुछ और लोग ज्वाइन करेंगे उसमें, तो वो नेक्स्ट संडे, मतलब ये संडे छोड़ के नेक्स्ट संडे में लेने वाला हूँ. और डेटा डैशबोर्ड खत्म होने के बाद स्टार्ट करेंगे प्रॉबेबली परसों यानी ट्यूसडे से सिक्योरिटी. सिक्योरिटी इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस ट्रेनिंग राइट नाउ. समझ जाओ इस चीज को. सबसे ज्यादा जरूरी चीजें जो है एडमिन ट्रेनिंग की, वो आप इसी टॉपिक में पढ़ने वाले हो. ये सारी चीजें, सिक्योरिटी, लाइसेंस, प्रोफाइल, यूजर मैनेजमेंट, रोल, OWD, शेयरिंग, टाइप ऑफ शेयरिंग, उसके बाद में हाउ टू ट्रांसफर द ओनरशिप, वेब टू लीड, वेब टू केसेस, केस रिस्पॉन्स, परमिशन सेट, फील्ड लेवल सिक्योरिटी, हर चीज जो आप पढ़ोगे वो यहाँ पढ़ो. ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी ट्रेनिंग. ठीक है, और ये प्रॉबेबली अपन ट्यूसडे से स्टार्ट करते हैं. दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट टॉपिक ऑफ एडमिन. देखते हैं कितना समय लगता है मुझे. करीब करीब 10 दिन तो भी लगते हैं इसको कंप्लीट करने के लिए. सो इन द मिडल ऑफ दिस मंथ प्रॉबेबली, समझ लो कि ये सेकेंड वीक, थर्ड वीक में ना, बस तो ये है, तो थर्ड वीक तक ये आसपास हो जाएगा, एडमिन कंप्लीट हो जाएगा थर्ड वीक तक. ठीक है.